تہذیب جی بھائی. اللہ پاک نے تمہیں انتہائی کرم نوازی اس کی، اور تمہاری محبتیں جو اس قوم کے ساتھ جڑی ہیں، سکھر میں دوبارہ یہاں تشریف لائے ہو، تم سے یہ سب بہت پیار کرتے ہیں. بہت شکریہ. جس طرح یہ تمہارا نام لے رہے تھے اور تمہیں ہائے کہہ رہے تھے، تمہیں ایک زور سے انہیں ہائے اور جپی دے دو، جادو کی جپی. بہت شکریہ. تالیاں بجا دیجیے ایک بار، مجھے پتا لگے. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. وہ جو تمہاری نظموں اور غزلوں میں تہذیب ہے، وہ جو چھپا ہوا اندر کا تہذیب ہے، اس کے علاوہ اب یہ فرمائشیں کریں گے، وہ یقیناً کچھ باتیں بھی ہوں گی، وہ سیشن کے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہوں گے تھوڑا سا، تو وہ بھی ہوگی. ایک نظم تمہاری وہ ہندوستان کی اداکارہ، وہ بڑی مشہور ہوئی تھی. سوارا کے لیے تھی. ہاں وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا ہوا تھا؟ نہیں، وہ بس اچھی لگتی تھی ان کے لیے ایک نظم میں نے کہی. اچھا، جو اچھا لگتا ہے اس کے لیے نظم. ہر کسی کے لیے نہیں، جو زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے لیے. ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، تہذیب کیونکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو بہت شائع ہے اس معاملے میں، اور انتہائی اچھا انسان ہے، محبتوں کے ساتھ، دلوں کے ساتھ. توسا شریف کا رہنے والا جو ہو، اس کے اندر تو اتنا ہمبل ہونا بنتا ہے. تہذیب نے جو ہے وہ اتنی محبتیں سمیٹی ہیں سماج سے، لوگوں سے، تم سے. تہذیب کے مشاغل، شاعری جیسے یہ سارے، اور ہم سب تمہیں پسند کرتے ہیں. تہذیب کو کون پسند ہے؟ مجھے عام روٹین میں شاعری کے علاوہ فلمیں دیکھتا ہوں، اور فلمیں میں ساؤتھ انڈین مرڈر مسٹری دیکھتا ہوں ہوئے جس میں قتل ہو رہے ہوتے ہیں. او تیرے کی. ابھی پشپا 2 دیکھی تھی. تو پھر شاعری سے قتل کرتے ہو پھر وہ دیکھ کے. تو اسپورٹس میں کیا پسند ہے؟ اسپورٹس میں پہلے کرکٹ پسند تھی. ہے تھی کیا مطلب؟ کہتے چھوڑو کرکٹ کو. بابر اعظم ظاہر ہے مجھے بہت پسند ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ کیا، اس کے لیے میں ایک بات بولتا ہوں. میں نے پچھلے دن کوئی پڑھا تھا، جب کوئی چھکے مار رہا ہوتا ہے ہم بابر کو روہت سے کمپیئر کر دیتے ہیں، کوئی سنچری مارتا ہے ہم کوہلی سے کمپیئر کر دیتے ہیں. اس کے لیے ایک شعر میں نے پڑھا ہے، وہ کسی کا شعر ہے کہ میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. فیلئر آتے رہتے ہیں، اس کا ٹائم نہیں چل رہا، ہم اس کے لیے تالیاں بجائیں گے، اللہ اس کو عزت دے گا، وہ ہمارا سٹار ہے، ہم اس کو اس طرح ضائع نہیں کر سکتے. کوہلی پاکستان، کوہلی سکھر کا تھوڑی ہے، بابر تو پاکستان کا ہے نا. اچھا جی، چلو یہ کرکٹ کی بات تھی، فلموں کی بھی بتا دی آپ نے. تو وہ جو زندگی میں ایک فلم شروع ہونی ہے وہ شروع ہو گئی؟ ہاں، وہ دیکھ بھی لی بڑے پردے پہ، فلاپ بھی ہو گئی. تو دوسری بنا لو. بنا لیں گے دوسری، بجٹ نہیں ہے. بجٹ کی تہذیب کو کمی نہیں ہے. تہذیب تمہارے پیار میں لوگ اتنے گرفتار ہیں، خطرناک حد تک گرفتار ہیں. مطلب میں کچھ اسٹوریز پڑھ رہا تھا، لڑکے بھی آئی لو یو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں. وہ چونکہ یہ سندھ کے ہمارا ذرا پرسنل معاملہ ہے. بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے. تو تازہ ترین کوئی اچھی سی غزل پہلے ان تک پہنچائیں تو یہ جس انتظار میں ہیں. اور کل کیونکہ آپ جب مشاعرہ پڑھ رہے تھے تہذیب اور آپ بیٹھے رہے، یہ آپ کا بہت شکریہ. تو آپ پڑھنے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ پورا اختتامی مشاعرے تک پھر آپ کو میں نے بلایا اور آپ نے پھر ان کو وعدہ دیا کہ ان کو سنائیں. رات بھی مجھے بہت خوشی ہوئی اور آج بھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. پتہ کیا ہے، یہ پیار جو ہے نا خریدا نہیں جا سکتا. آپ لوگ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہی ہوتے ہیں جو کسی کی عزت کر کے، محبت کر کے اس کو سٹار بناتے ہو، پھر اس کی عزت کرنا شروع ہو جاتے ہو، پھر کوئی معنی بنتے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نخرے کیے جائیں. یہاں باتیں 1000 لوگ کر جائیں گے بیٹھ کے، ہر بندہ بول جائے گا کہ، لیکن آپ میں سے جتنے لوگ مجھے ملے ہوں گے ان سب کو پتہ ہوگا کہ میں آپ میں سے، میں نے اپنی زندگی میں کسی دوست کو فین نہیں بولا، میں بھائی بولتا ہوں. آپ لوگوں کی عزت ہے اور آپ بڑے آدمی ہو، آپ لوگوں نے یہ بنایا محبت آپ نے. میں ایک شعر کہوں گا جو پچھلے دنوں میں نے کہا، وہ ایک ہی شعر ہے: جس شخص کو دیکھ کے جیتے ہو خود اس کو برا کہہ دیتے ہو، حافظ تمہیں یاد نہیں رہتا تم پی کر کیا کہہ دیتے ہو. بہت شکریہ. واہ واہ، زبردست زبردست. ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم لوگ تہذیب سے؟ فرمائش کیا تھی؟
فرمائش کیا تھی فرمائش؟ وہ میں سنا دوں گا. ہاں ہاں آواز نہیں آئی نا یہاں تک. شعر ہے وہ سناتا ہوں. اس کے بعد بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے, میں رونے پہ آ جاؤں تو جھرنا کیا ہوتا ہے, واہ 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 میرا چھوڑو میں نہیں تھکتا میرا کام یہی ہے, واہ لیکن تم نے اتنے پیار کا کرنا کیا ہوتا ہے, واہ 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 موت تو میری مٹھی میں رہتی ہے اس کی خاطر, اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں مرنا کیا ہوتا ہے, واہ واہ جن پر وہ آنکھیں اٹھی ہیں ان سے جا کر پوچھو, ڈوبنا کیا ہوتا ہے پار اترنا کیا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ نا وہ آج کل تصویریں چل رہی ہوتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ, تو بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں دکھی شاعری پہ لگا کے خود لڑکیوں کے ساتھ پھر رہا ہے. میں آپ لوگوں کا ہی کام آسان کر رہا ہوں. ہاں جی, اور کوئی فرمائش؟ کیونکہ آپ کل وعدہ ہوا تھا آپ لوگوں سے, یہ تہذیب یہاں موجود ہیں, آپ کی بات بھی سن رہے ہیں اور آپ سے سوالات بھی لیں گے ہم. میں ان سے جو سوالات کرنے تھے وہ ہم نے کر لیے, جو اہم بات تھی وہ, اور اس سے بھی زیادہ وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں تمہاری بات چیت ہو کیونکہ بہت پیار میں تمہارے آئے ہوئے ہیں. جی فرمائش, آپ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ مریم کے لیے بول دیں کچھ سوال. مریم کے لیے؟ جی مریم نواز کے لیے نہیں, جو آپ کی محبت ہے. اچھا وہ میں نام سناؤں گا اینڈ پہ. وہ جس کے خطوط لکھے تھے نا وہ والے کیا ہاں وہ میں سناتا ہوں, مجھے یاد رہا میں اینڈ پہ سنا دوں گا. کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھنا ہے. ہاں جی, کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو بیٹا. جی بھائی مائک ادھر دے دیں. کیا آپ اس وقت تھکے ہوئے ہیں یا ہمیں لگ رہے ہیں؟ میں تھکا ہوا نہیں ہوں, آپ کو دیکھ کے تو بالکل تھکا نہیں. میں آیا تھا لاہور سے, اب ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے. نہیں آتا کسی پر دل ہمارا, ہاں وہی کشتی وہی ساحل ہمارا, تیرے در پر کریں گے نوکری ہم, تیری گلیاں ہیں مستقبل ہمارا. کبھی ملتا تھا کوئی ہوٹلوں میں, کبھی بڑھتا تھا کوئی بل ہمارا. واہ 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 واہ. تیزی بھائی فون بجا اور چولہا جلا ہوا چھوڑ دیا, وہ سنانا. سنا دے سنا دے. وہ آپ پتہ کیا آپ یہ شعر سن لیجئے, اس کے بعد وقفے سے سوال کریں گے کہ تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا, واہ, آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا, تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری, تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا. لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں, فون بجا اور چولہا جلتا چھوڑ دیا. تالیاں بجا یہ لیجئے, لڑکیوں میں سے پتہ لگے بچیوں گا میں تو. سے یار, یہ دے دو بیٹا مائک, بری بات, اب اس کو دے دو. بھائی آپ سوال نہیں کرتے, فرمائشیں کر رہے ہو. نہیں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ جو ہے وہ سندھ یونیورسٹی سے پڑھے شاید, میں نے سنا ہے. مہران یونیورسٹی. جی مہران یونیورسٹی سے. تو آپ نے سندھی میں کوئی پوئٹری کی ہے؟ موقع سندھی ایندی آ پر آؤں, سندھی میں شاعری کون کہی آ. وہ جو ہے نا محبت جو ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ٹائم بھی ہو جائے, یہ کسی کے بس پہ ہوتی ہے, یہ اترتی ہے. کسی کے نصیب میں نہیں ہے تو اس کو کبھی نہیں ہوگی. واہ, وہ نا طوفان کی امید تھی, آندھی نہیں آئی, وہ خود تو کہاں اس کی خبر بھی نہیں آئی. شاید وہ محبت کے لیے ٹھیک نہیں تھا, شاید یہ انگوٹھی اسے پوری نہیں ہے. ارے واہ واہ, شاید یہ انگوٹھی اسے پوری نہیں آج ہی آئی. میں پڑھ رہا تھا کہ جو مرد ہوتے ہیں نا, ایک رائٹر تھا, اس نے کہا کہ میں نے جس سے محبت کی میں اس سے عمر میں بڑا تھا, پر وہ مجھ سے محبت میں بڑی تھی. ارے واہ 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 واہ. کیونکہ عورت جب وہ چاہتی ہے نا کسی کو تو وہ ماں بن جاتی ہے, اور مرد اس کا بچہ بن جاتا ہے. واہ واہ واہ. سر جیسا کہ ہم کتاب میں شاعری پڑھتے ہیں, وہ شاعری ہمیں جو ہے نا آج جو سوشل میڈیا پہ شاعری آپ پڑھتے ہیں, وہ شاعری کہاں ہے جو فیض نے لکھی ہے, جو غالب نے لکھی ہے, جو حبیب جالب نے لکھی ہے, جس شاعری پر ہمیں سوچنا پڑتا ہے, ووکیبلری ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے, وہ شاعری ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے فیض صاحب نے لکھا ہے نا, تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. یہ فیض, یہ غالب, یہ حبیب جالب, یہ
शाह लतीफ, ये सच्चल, ये अयाज गुल, ये अदल सुमरो तो हमें नजर ही नहीं आता। मुझे ये जवाब चाहिए। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपने बहुत तरतीब ही अजीब कर ली। गालिब कब के शायर थे, फैज कब के शायर हैं और जालिब कब के शायर हैं? अगर आपको थोड़ी सी तरतीब पता होती तो आप ये सवाल भी ना करते। दूसरी बात यह है कि हर शायरी का एक अहद होता है। दो तरह के मकतब फ़िक्र होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं शायरी की। एक जहां आप बात कर रहे हैं उस तरफ होता है, गालिब तो खैर उस हिस्से के शायर भी नहीं थे। दूसरा ये होता है कि हम लोग रोमांटिसिज्म वाले लोग हैं, ठीक है। अब रोमांटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि बराह रास्त औरत की बात की जाए। दूसरी बात यह कि आपने सूफी शाह आपने मिक्स कर लिए। शायरी की समझ तब आती है जब आपने शुरू से लेके आखिर तक एक एक शायर को पढ़ा हुआ हो। जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आपने पढ़ा नहीं होगा तो समझ नहीं लगती। हम भी उसी तरह की ही बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एहतजाज है वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होता। मोहब्बत में बात करना भी एहतजाज ही होता है। अगर हर कोई फैज़ या जालिब की शायरी करता रहेगा तो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं। मोहब्बत कोई छोटा मसला नहीं है और वो हमारे अंदर की बात है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग कर रहे हैं, अगर मैं नहीं कर रहा तो। एक मैं ये चाहूंगा नहीं, रीडिंग कल्चर तो आप ज्यादा, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। रीडिंग कल्चर तो आपने पता क्या कहा, इन्होंने पता क्या सवाल पूछा कि वो शायरी जिसको हमें वोकैबुलरी ढूंढनी पड़ती है वो किधर है। अगर आपको वोकैबुलरी ही ढूंढनी है तो पढ़ी जाओ उनको, फिर वो बड़े लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये जितने लोग अब ये खड़े हुए हैं, कभी जिंदगी में शायरी में इतने लोग आए थे? इनको वो वोकैबुलरी आसान मिली है तो ही आए हैं। जब तक आप इस वक्त के लोगों को रिलेट नहीं करोगे, जब तक इनके मसाइल नहीं समझोगे, तब तक जैसे आपको गले में दर्द है, दूध से आप पियोगे थोड़ा सा मीठा लगेगा, फिर हेडोलिन पियोगे ना, तो पहले ही हेडोलिन पियोगे तो आप बोलो गले में दर्द ही ठीक है। अब इसके जवाब ये भी है तहजीब, इसका एक जवाब ये भी है तहजीब, इसका एक जवाब ये भी है कि एक शानदार सी रोमांटिक गजल सुना दो। बहुत सारी तालियां और शोर। हाँ, बहुत शानदार सी। जानू ये अच्छी गुफ्तगू है, लेकिन ये इसका टाइम नहीं हो। चलो वो हो गया जवाब। मैं कुछ और वहां जाओ। जी एक गजल सुनाता हूँ जी। गजल। आईने आंख में चुपते थे, बिस्तर से बदन कतराता था। वाह। एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। वाह। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी। रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता था। हाँ। मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो। वाह। मुझे हाथ उठाना पड़ते थे, तब जाके वो फोन उठाता था। वाह। मुझे आज भी याद है बचपन में, कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता था। वाह। मेरी तख्ती पे दिल बन जाता था। क्या अच्छा है भाई, वाह। मेरा जी एक ये सवाल था। हाँ बेटा बोलो। हर जो आशिक है वो शायर बन जाता है, तो क्या महबूब को फिर जो है उसका एहसास होता है? सुन लीजिए सुन लो, चुप रहो, सुन लो बच्ची। सवाल सुन लो। हाँ बेटा बोलो। तो महबूब का क्या एहसास हो जाता है उस चीज का? हाँ चलो हो गया। आप जिनसे मोहब्बत करते हो ना, आपको लगता है, अगर किसी आदमी को एहसास नहीं है, आपको लगता है कि उसको एहसास हो जाएगा, तो ये आप अपने दिल को तस्कीन देते हो। उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, उनके तिल सियाह धब्बों में बदल जाते हैं, उनको एहसास नहीं होता, कभी भी नहीं होता। शहजाद अहमद साहब का शेर है कि जब उसकी मांग में पहला सफेद बाल आया, तब उसको मेरे महो साल का ख्याल आया। वाह। हाँ बेटा, आप गजल की फरमाइश कौन कर रहा था? हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तहजीब भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। फर्स्ट जी, टाइम आपको किधर है? मैं यहाँ सक्कर पे जो लाइव पे देख रहा हूँ। मेरा सवाल है आपसे ये कि तहजीब ये बिल्कुल एक आखिर में खड़ा हुआ उस तरफ। अच्छा। ये कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है, वो उधर है। एक तरफा मोहब्बत को अपने वो खड़ा है, कुछ इधर। 4 लाइनों में बयान करें। जानो, पहली मोहब्बत के बारे में मैंने ये कहा कि हम बहुत छोटे होते हैं, जब तक हमें हो जाती है तब तक तो हमें पता भी नहीं लगता कि हो चुकी है। जैसे कोरोना का नहीं ना पता लगता था कि हो गया है कि नहीं, टेस्ट करवाए पता भी नहीं लग रहा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस वैसे ही हो जाता है। तो मैं उस पे
अंजुम सलीमी साहब का एक शेर है कि मुझको जाने दे मुझे पहली मोहब्बत की तरफ, हाँ, मुझको जाने दे मुझे पहली मोहब्बत की तरफ, मैंने एक शख्स को वादे से रिहा करना है। वाह, और ताबे साहब का शेर है कि 1000 इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ ना लगे। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वाह, मेरा नाम खालिदा है और मुझे आपसे ये सवाल करना है कि शायरी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, शायरी गहरी बात को बहुत मुख्तसर अंदाज में पहुँचा देने का नाम होता है, तो उसके लिए यकीनन किसी मूड की, किसी माहौल की ज़रूरत होती है। आपकी शायरी बहुत गहरी होती है जो लोगों के दिलों तक पहुँच जाती है, चाहे यूँ कह लें कि दो मिसरे ही हों। तो क्या आपको भी किसी ऐसे माहौल की नीड होती है या किसी ऐसे उसकी के जिसमें आप ये शेयर करें? नहीं, मैं पता क्या है, शायरी जो होती है, आपने बहुत सही बात की है कि दो मिसरों के अंदर एक पूरा जहान मानी पोशीदा होता है और एक पूरी कायनात उसमें ढूंढ सकते हैं। एक नावल के ऊपर एक शेर लिखा जाता है, एक शेर में से एक नावल लिखा जा सकता है वो, लेकिन मसला क्या होता है कि शायरी जो है इसका सोर्स मालूम नहीं होता। ये वो जो प्रीस्पोज नोशन होता है ना कि यानी आज रात को मैं लिखने बैठ जाऊंगा तो मैं लिख लूंगा, ऐसा नहीं होता। इल्हाम ये कहाँ से आती है इसका कोई पता नहीं है, बस ये आती है कहीं से, वारिद होती है। मतलब जब इनके ऊपर एक कैफियत तारी होगी उसके लिए कोई टाइम, कोई वो चीज उसके लिए जरूरी नहीं, कोई टूल्स चाहिए। वहशत में पैदा दुश्वारी कर दी है, हाँ, हमने कैश की वीडियो जारी कर दी है, हाय, इससे आगे तुम जो चाहो कर सकते हो, हमने बस कैफियत तारी कर दी है। ये बात हमने बस कैफियत तारी कर दी है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि अगर कोई इंसान शायरी करना चाहता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो शायरी की जो लाइनिंग्स होती है उनमें राइमिंग होती है, तो हम किस तरह से राइमिंग को फाइंड कर सकते हैं अगर हम शायरी करना चाहें तो? इसके ऊपर मैंने डिटेल गुफ्तगू जो है अपने इंस्टा के ऊपर वो मैंने की हुई है। शायरी जो है वो इस तरह से सीखी नहीं जा सकती, सिर्फ राइम का मसला नहीं है ना। जो इंग्लिश पोइट्री है या वो, उसमें तो सिर्फ राइम ही चलता है, लेकिन हमारे यहाँ एक खास तरह का रिदम भी होता है। सब कॉन्टिनेंट की जितनी शायरी है वो रिदम पे है, वो रिदम एक खास तरह की ग्रामर है, वो सीखने के लिए आपको उम्रें लग जाती हैं। अगर आप सिर्फ राइम ना भी करना चाहें, रिदम भी ना सीखना चाहें, तो उसका उर्दू शायरी में एक बहुत आसान हल है, वो है प्रोस पोइट्री का। जो 60s में जो हमारे यहाँ नसरी नज़्म की एक बहस चली और बहुत अच्छे लोग उसमें आए, तो आप नसरी नज़्म लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिसको वो बहर या रिदम या वो ग्रामर नहीं आती, तो वो नसरी नज़्म लिखेगा भी तो उसमें वो पुख्तगी नहीं आती। उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, हाँ हाँ, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। वाह, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। वाह, बहुत शुक्रिया, वाह, वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, सफेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, हाँ, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए, हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। वाह, तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। अरे वाह, 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 मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं, हाँ, जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। हाँ, खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले, जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। वाह, वाह, ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करी करी आया। हाँ, हाँ, छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर हाँ, यकीन आया था, लेकिन कभी नहीं आया। वाह, फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया, मैं कश्मकश में थी, तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जौन लगते हो। हाँ, 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 वाह, हम वाह, एक साथ रहे और हमें पता न चला, ताल्लुकात की हदबंदियां भी होती हैं, मोहब्बतों के सफर में जो रास्ते हैं वहीं हवस की समत में पगडंडियां भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती, और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। वाह भाई, वाह, 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 वाह। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता? मैंने ये कब कहा? आप इतने लोग हैं, तालियां बजाएं ताकि हाँ, पता लगे। ये मिसरा ऐसे ऐसे। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता?
छोड़ता है मगर एक दिन से ज्यादा नहीं छोड़ता। वाह, मैं जिसे छोड़कर तुमसे छुप कर मिला हूँ, अगर आज वो देख लेता तो शायद वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ता। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह वाह, मैं जिसे छोड़कर तुमसे छुप कर मिला हूँ, अगर आज वो हाँ, देख देख लेता तो शायद वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ता। लोग कहते हैं तहजीब हाफी उसे छोड़कर ठीक है, हिजर इतना ही आसान होता तो तौसा नहीं छोड़ता। हाय हाय, हिजर इतना ही आसान होता तो तौसा नहीं छोड़ता। क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, हाँ 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 इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। हाँ 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 यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, हाँ जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। हाँ हाँ हाँ, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। हाँ 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 उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, हाँ हाँ हाँ, इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। वाह वाह वाह, अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुम्हें इल्म नहीं, हाँ, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। वाह 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 वाह। अच्छा, एक बात बैठने पे ही तहजीब बड़ी मोहब्बतों के साथ मैं चाहूंगा, वो पीछे कुछ बच्चे खड़े, अगर यहाँ खड़े होके कुछ गुफ्तगू कर लें और शायरी हो जाए, तालियां बजाओगे, शोर मचाओगे। हाँ, ये वो वैसे भी नजर हाँ, वाह वाह जी। अब आपको मजीद फरमाइश किसी की या तहजीब अपनी? हाँ जी बेटा, आप बताएं। एक इधर मैं हूँ कि घर वालों से नाराजगी है, हाँ हाँ, एक उधर तू है कि गैरों का कहा मानता है। हाय हाय, मैं तुझे अपना समझ कर ही तो कुछ कहता हूँ, यार तू भी मेरी बातों का बुरा मानता है। हाय, वाह 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 वाह। ये दुख अलग है कि उससे मैं दूर हो रहा हूँ, ये गम जुदा है वो खुद मुझे दूर कर रहा है। वाह, ये दुख अलग है कि उससे मैं दूर जुदा हो हो रहा रहा हूँ, ये गम जुदा है वो खुद मुझे दूर कर रहा है। तेरे बिछड़ने पे लिख रहा हूँ मैं ताजा गजलें, ये तेरा गम है जो मुझको मशहूर कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये तेरा गम है जो मुझको मशहूर कर रहा है। हाँ जी। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, तहजीब हाफी आपके साथ यहाँ मौजूद है, वो वहां तक दूर तक और उसके भी दूर तक और उससे भी दूर तक लोग खड़े हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज जब तक हाफी वाली जो कल आ रही थी वो आज कमजोर पड़ गई और तालियां भी कमजोर हैं। नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये अच्छा गाल सुनो, मैं सादी सेंध वाली सरायकी अलग है, मैं डरगाजी खान वाली साइड रहना, वो सरायकी अलग है। तो अगर थोको वह सरायकी समझ आंदी है तो मैं सुड़वेंदा वाला। तेजा मूंझा अजण तक चई वधे हैं, मोहब्बत विच वडे धक चई वधे हैं, बलोच आसे पते क्या थे अचानक, तेरी जुती ते अजरक चई वधे हैं। रले रावण जा कसमा चेंदा रह गए, जंदी शादी ते ढोलक चई वधे हैं। हे के जी डैन टकरी है या साकू, अजा ते जिस्म ते चक चई वधे हैं। वाह घर में भी दिल नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा, वाह, जाने क्या खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। रात के 3 बजने को है यार, ये कैसा महबूब है जो गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। रात के 3 बज रहे हैं, ये कैसा महबूब है। वाह, बलूचिस्तान के लिए मैंने शेर तो नहीं, वो एक बात बोली थी। नहीं वो कोयटा में मैंने बोला था, वो हमारे बलूचिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उनकी ही लाइन थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरजमीन पर 1 कटोरा पानी की कीमत 100 साल वफा है, आओ जी भर के पानी पियो और अपनी जिंदगियों के सौदे कर लो। ये बात, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, हाँ, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, वाह, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, हाँ, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। वाह, मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। ओए, हाँ जी। मैं जो दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी देर खड़े रहे और इतनी देर रात भी और आज भी। मैं एक नज़्म सुनाऊंगा, उसके बाद एक शेर सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मेरी सारी तरबियत ही सिंध से हुई है। सिंध नहीं सब इतनी, अगर आप देखते हैं ना बाकी लोगों से अलग, मैं थोड़ा पोलाइट हूँ, ये भी मैं सिंध से ही सीखा हूँ। वाह वाह,
सिर्फ तालियां लेने की बात लेने के लिए नहीं कह रहा, सच में मैं ऐसा समझ। एक नज़्म आखिर पे एक शेर सुनाऊंगा एंड में। हम मिलेंगे कहीं अजनबी शहर की ख्वाब होती हुई शाहराहों पे और शाहराहों पे फैली हुई धूप में। एक दिन हम कहीं साथ होंगे, वक्त की आंधियों से अटी सातों पर से मट्टी हटाते हुए, एक ही जैसे आंसू बहाते हुए। हम मिलेंगे घने जंगलों की हरी घास पर और किसी शाखे नाजुक पे पड़ते हुए बोझ की दास्तानों में खो जाएंगे। हम सनोबर के पेड़ों के नौकीले पत्तों से सदियों से सोए हुए देवताओं की आंखें चबो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। हम मिलेंगे कहीं बर्फ के बाजुओं में घिरे पर्वतों पर, पांच कब्रों में लेटे हुए कोह पैमाओं की याद में नज्म कहते हुए। क्या अच्छी मंजिल जो के शेर। पहाड़ों की औलाद थे और उन्हें वक्त आने पे अपने माँ बाप ने अपनी आगोश में ले लिया। वाह। हम मिलेंगे कहीं शाह सुलेमान के उर्स में, अरे वाह। हौज की सीढ़ियों पर वुजू करने वालों के शफाफ चेहरों के वाह आगे। वाह वाह। हम मिलेंगे कहीं, नज्म लंबी आखिरी सुना देता हूँ। हम मिलेंगे कहीं बाग में, गाँव में, धूप में, छाँव में, रेत में, हाँ हाँ। दश्त में, शहर में, मस्जिदों में, कलीसों में, मंदिर में, मेहराब में, वाह। चर्च में, मूसलाधार बारिश में, बाजार में, ख्वाब में, आग में, हाँ हाँ हाँ। गहरे पानी में, गलियों में, जंगल में और आसमानों में। क्या बात। कौनों मकान से परे, गैर आबाद सैयारा आरज़ू में, सदियों से खाली पड़ी बेंच पर, जहाँ मौत भी हमसे दस्तो गरेबान होगी, वाह। तो बस एक दो दिन की मेहमान होगी। हाँ 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 हाँ, बस एक दो दिन की मेहमान होगी। दोस्त जी कह रहे थे तहजीब सिंध के लिए कोई बात, सिंध के लिए वो हसन दर्स वाली बात याद आती है जी। सारो सिंध पिरी जो पाछो, वो उससे अच्छी कोई लाइन नहीं हो सकती। वाह वाह वाह। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, हाँ हाँ। कि इसमें बंदा मर जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन लिया भी, मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। वाह। और आखिर में दो शेर हैं। जी जी प्लीज। दोस्तों आप सबकी नजर है, आपका बहुत शुक्रिया, आप इधर खड़े रहे, बैठे रहे, मेरे लिए बहुत अहम है। आखिर पे दो शेर सुना के मैं इजाजत चाहूंगा कि उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ। हाँ। तो आप सबको समझ आ जाएगा एंड में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। वाह। जब भी सोचूं कि उसे मैंने भुला देना है, हाँ। फेसबुक पर कोई तस्वीर लगा देता। वाह। तहजीब, बहुत सारा प्यार तुम्हारा सक्खर वालों की तरफ से, और सक्खर वालों का प्यार, एक सेल्फी होगी तहजीब के साथ जो कि वो सक्खर वालों के लिए। बहुत सारा शोर के साथ तहजीब हाफिज।